So Raj, thank you very much for sparing your time to discuss with me the opportunities, the placement scenarios in IIT Kharagpur. So let me first introduce to our viewers. Raj is doing his masters from IIT Kharagpur, and he is doing his masters in food process engineering. Raj, you got admission in IIT Kharagpur based on your GATE score, which you got in 2020. So you utilized your 2020 GATE score, and with 613 general category GATE score, you got admission in IIT Kharagpur. So Raj, मेरा पहला क्वेश्चन, my first question is to you. How much good this branch is, like food process engineering? Student, most of the mechanical engineering student, they look for thermal design, production, or some kind of applied mechanics, mechatronics, these kind of branches. So how much you are enjoying in IIT Kharagpur after getting admission into this branch, food process engineering? So, sir, I will first talk about the perspective of a mechanical engineering. So, if a mechanical engineering does not wants to do anything about mechanical, but apart from that mechanical thing, so this is the perfect branch you can get in. So, the academic section, first of all, I'll talk about that. What help you get from the academic section is that you have one or two subjects which are similar to your BTech coursework, and there are one two subjects which are quite easy, like chemistry and bio, which are there, but it is quite easy to pass, and there is no workload, so you can easily prepare, and you get like faculties are quite chill here, so like you can easily score 8 CGPA. Good. So finally, मेरे ख्याल से masters का मतलब यही है कि it is good to get masters means getting some specialization in some domain. आपने Yes, sir. BTech कर लिया, you did BTech in mechanical engineering. Now you can get specialization in any of the area. You can get specialization in some environment engineering. You can get specialization in data science. So it is not like that कि आपने master BTech अगर mechanical में किया, you need to go for masters also in a single kind of domain. It is good to Yes, sir. explore different wide application of engineering. So it is food process engineering, है ना? ये food process engineering है, so majorly it is related to engineering branch only. Yes, sir. तो क्या करिकुलम रहता है? आपने कुछ सब्जेक्ट्स बताए, तो क्या वो कंफर्टेबल रहते हैं फॉर अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट टू स्टडी ऑल दो सब्जेक्ट्स? Yes, sir, it is quite comfortable because because there are one or two subject, as I talked, it is related to mechanical engineering. In that subject, if you can score higher, and if you can take that chemistry and bio, that two subjects are there on a little side, like you can easily score passing marks. So like your CGPA can maintain up to 8.5, and that is quite enough here if you get गुड. 8.5 CGPA. So now let us come to the placements, Raj. तो इस ब्रांच में प्लेसमेंट्स कैसा है? आपके सीनियर्स का कितना प्लेसमेंट हुआ है? व्हाट एवरेज पैकेज दे आर गेटिंग? Sir, as of now, like the first phase is over, and out of that, if I talk about whole agriculture branch, so approx out of 100 people, like 20 got placed right now as of phase one, and 100 if students, I talk 100. about that, yes, sir, and and if I talk about FP branch, so like only three got placed, and one in HSBC Bank of package 14 lakh, one with 57 lakh package in Accenture Japan, and there is one more that I do not have much information about her. तो वेरी गुड पैकेजेस दे आर गेटिंग. आई फील ये डिपेंड नहीं करता कि इन विच ब्रांच यू आर स्टडीing. अगर आपने उस तरह की कुछ लीडरशिप स्किल्स, उस तरह के कम्युनिकेशन स्किल इफ यू डेवलप, एंड देन इफ यू आर यूटिलाइजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज, द एक्सपोजर व्हिच a student is getting in IIT, तो आप प्लेसमेंट अच्छी ले पाते हो. तो वो irrespective of the branch, there are so many non core company actually visit in various IITs. जैसे बैंक्स आपने Yes, sir. बताया, आपने कुछ ऐसी नॉन कोर सेक्टर की कंपनियां रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ डेटा साइंस रिलेटेड डोमेन, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये मैटर ही नहीं करता यू आर इन फूड प्रोसेस, यू आर इन थर्मल, यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग, और यू आर इन विच डोमेन. ओनली इट मैटर्स व्हाट स्किल यू आर हैविंग. तो ये बहुत अच्छा है कि अगर आप स्किलिंग पे काम कर रहे हो, इफ यू आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग दोस काइंड ऑफ स्किल्स, देन यू कैन गेट वेरी गुड प्लेसमेंट आउट ऑफ दैट. Yes, sir. तो I आपकी, actually talked about यस यस प्लीज गो अहेड राज. I actually talked like with that person. They're the seniors which like who got placed in that companies. They told me on the from the very first day they started coding, and from that day till now they just like they little focus on their academics with a 9 CGPA, and in first phase basically above 9 CGPA are considered. So like they little consider their academics, and apart from that they just only did coding and communication skills. So like if you have both these two skills, good communication and that good coding skill, you can get into any company irrespective of that like branch.
branch. बिल्कुल. And majorly because most of the placements are there in non-core only. Yes, sir. तो जब नॉन कोर का प्लेसमेंट है तो देयर इज नो डिफरेंस इवन. एंड इवन आई फील कि इफ यू आर इन सम ब्रांच लाइक फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग देन यू विल गेट मच टाइम एक्चुअली टू लर्न दोस काइंड ऑफ स्किल्स, कोडिंग वगैरह, Yes, sir. एज कंपेयर टू डिजाइन या थर्मल. हो सकता है वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, बट डिजाइन वगैरह में मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं मिल पाता आपको कोडिंग वगैरह सीखने के लिए. तो आप भी मेरे ख्याल से यू आल्सो आई होप यू स्टार्टेड लर्निंग दोस काइंड ऑफ थिंग्स, राज. Actually, sir, I'm looking for non-tech thing, not coding, but like project management, these kind of stuff. I'm using online courses of that, so I'll go in that domain, non-tech domain. नॉन-टेक डोमेन मेजरली रिलेटेड टू काइंड ऑफ मैनेजमेंट एरियाज. तो मेरे ख्याल से उसमें Yes, sir. बैंकिंग Yes, सेक्टर sir. की कंपनीज आएंगी, बैंकिंग सेक्टर की Yes, कुछ sir. कंपनीज या कुछ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जिनमें चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिलेटेड कंपनीज, दे विल Exactly, sir. I'm doing courses from NPTEL. गुड. तो मेरे ख्याल से some data you got and you are discussing with your ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, बिकॉज दैट डिस्कशन इज रिक्वायर्ड कि क्या किस तरह की कंपनीज विजिट की लास्ट ईयर में, एंड व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज आर एक्सपेक्टिंग, लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग व्हिच आर गोइंग टू विजिट दिस ईयर. बिकॉज अगर वो डेटा आपके पास है दैट विल हेल्प यू टू एनालाइज कि हाँ मेरे को इस एरिया के लिए प्रिपेयर करना है. आई होप Yes, दैट sir. काइंड ऑफ एनालिसिस यू कैरिड आउट. गुड. तो आप अभी with this score you got admission and placements are looking good in IIT Kharagpur. Other Yes. than this branch, Raj, how much is research infrastructure environment in IIT Kharagpur? IIT Kharagpur is one of the top most IIT in our country, but overall, how much is your experience residing in IIT Kharagpur? So such a beautiful campus it is, first of all, and obviously when you are a non-IITian, like in your bachelor, so its sense of proud is there. Like like always told my relatives and all that even यहाँ नहाने भी अगर जाओ ना बाल्टी लेके तो उसमें भी proud feel आता है. Great. So the sense of proud is there. Yes, obviously like every places has some negative things, and there's these things. So but I will not talk about those negative things, but there is a lot more positive things here. You can the environment here, like अब 2 बजे रात को ही बाहर निकल जाओ, you will not see the roads like खाली नहीं रहेंगे, वो भरे रहेंगे लोगों से. So it's a good line, and the playing opportunities, everything, सब events होते ही रहते हैं यहाँ पे, अलग अलग events हो गया, cultural events वगैरह हो गया, halls are very good. तो बहुत सारी चीजें यहाँ करने के लिए, explore करने के लिए. तो जैसे जो आपने बताया, you are utilizing some NPTEL platform to learn those kind of things, some things Yes, sir. related to project management, supply chain management. तो आपको IIT में भी some courses you get, some subjects you can choose with ये जो आपका food process engineering branch है, तो क्या ऐसा flexibility रहता है curriculum में कि you can choose some of the subjects related to industrial Yes, sir. product Yes, management? sir. Yes, sir. अभी भी हमारे electives जो हैं, तो यहाँ breadth elective करके होता है, एक subject आप ले सकते हो, and apart from that एक subject you can take 4 additional subjects also. तो 4 additional subjects आप रख सकते हैं out of your domain. Yes, sir. But I will recommend, like if students are watching this, so I will recommend them कि आप यहाँ के courses को थोड़ा सा कम वो करके NPTEL वगैरह के courses ज्यादा, और जितने certification कर सको वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपका CV के लिए. Yes, certification and finally you need to get some expertise, है ना. आप चाहे वो MIT का platform is also I feel good. So they also provide some certification. से MIT के भी courses तो चलते हैं similar to NPTEL. But I don't know, like they also provide some certification or not. MIT का मुझे भी आइडिया नहीं है सर. यहाँ बच्चे वहीं के, मतलब वहीं के कोर्सेज करते हैं, वहीं से पढ़ते हैं बच्चे यहाँ पे. NPTEL. Most of the students go for NPTEL courses. Good. तो जो research है राज, research which a student needs to start in the second year of his master's program, तो वो research they need to do related to their domain only, and or other than that they are also having some flexibility in choosing some research area. Sir, like now it is
Actually the domain is expanding. Like if you're right now we have got the, and one also criteria change, like it is not that in second year you have to start your that research work. In the second semester itself you started your, like in IIT Kharagpur it is that in second semester you will start working on your project. Yes. So there will be a list of subject, and on CGPA basis you will have the opportunity to choose that project subject. And talk about the various domain. Yes, we have that artificial big data and all, like in food related food related domain. So we have that merging of things in that. Good. तो आपने यू गोट एडमिशन बेस्ड ऑन योर 2020 स्कोर. मेरे ख्याल से आपका कुछ 1-2 साल का फिर गैप रहा होगा, 1 साल का. एंड इन विच ईयर Yes यू sir, हैव I कंप्लीटेड? 2019. 2019. मेरे ख्याल से 19 के बाद तो ज्यादा गैप नहीं रहा आपका. तो व्हाट यू वांट टू सजेस्ट टू आवर फ्रेंड्स, टू योर फ्रेंड्स, राज, टू योर जूनियर्स, कि क्या ये अच्छा है कि दे आर टेकिंग गैप एवरी ईयर, they are looking for scoring some high gate score, 700, 800 gate score. It is good to get that much gate score if you are getting in first year or first attempt or second attempt or even in third attempt. But is it good to take risk every time, every year? Because there are so many students preparing for Sir, GATE for last 4 year, 5 year, and they are not improving. Their GATE score is not improving. So when I discuss with them, I suggest them it is good to try for 1-2 times, 3 times you can try. But even in 3 years, if you are not getting some changes in your GATE scores, for some first year you got GATE score 550, second year you're getting close to 600, third year again you're getting 575, it means you're not improving actually. But yes, if you're getting some improvement, then you can take risk. So in that case, I feel it is good to go for masters, because in masters nowadays placements are very good. And even if yes you are sir. getting into some non-core branch also, then you can get some expertise skill, and then you can make very good career out of that. Because I feel the minimum package the ITs are offering, they are in the range of 10 lakhs, 12 lakhs. Yes sir, more than this. More than that. Good. तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? व्हाट मैसेज एक्चुअली यू वांट टू गिव टू योर जूनियर्स फ्रेंड्स? So, sir, the first thing I want to tell them is that eventually it is that money which matters, that number which will matter. Like I was also a core enthusiast in mechanical engineering, and after 2019, I have done that job for 2 years, but I have seen no growth there. So even if I hard work in that core domain for 10 years, I will not reach up to that 1 lakh per month salary mark. It is not Yes. that easy, sir. And the Yes. workload is quite hard there. But if Yes. you talk about that non-core area, people, what there is a misconception that it is quite tough, that coding. Sir, अगर ये tough होता तो इतने लोग तो नहीं करेंगे. Like अगर यहाँ पे 16,000 जनता है तो 16,000 में से कम नहीं तो 12,000 13,000 जनता, they are like on doing coding, and they are getting placed in such good companies, and they are continuing that. So पहली चीज, नंबर सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, इवेंचुअली वही मैटर करेगा. आप जितने भी कोर एंथुसियास्ट हो, जब आप देखोगे कि आपका दोस्त जो है साथ वाला जो 20 लाख पैकेज कमा रहा है और आप 45,000 पे हो, तो वो सच में आपको चुभेगा. पहली चीज Yes. ये. और दूसरी चीज यही है कि इट इज इजी, सब करते हैं, सबसे हो जाता है, तुम भी हो जाएगा. और तुमने मैकेनिकल का गेट अगर फोड़ा है ना, तो तुम छोटी मोटी चीज नहीं हो. Yes. तो फाइनली यही चीज है. आपको वो पॉजिटिव माइंडसेट रहना पड़ेगा. और अभी हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो चीजें जो है वो 2000 नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, बट मैकेनिकल का आपको ये सोच के चलना पड़ेगा, these are a kind of additional skill, additional subject which you need to cover, because and that is a need of this time. Because अभी प्योर कोर मैकेनिकल जॉब्स तो बचेगा ही नहीं. जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से हम we are moving towards इंडस्ट्री 4.0. तो अभी तो इंडस्ट्री 4.0 में भी हमारे जो मशीनरी है, they will be totally interconnected with some computers and other advanced things. तो मेरे ख्याल से आपको वो तो सीखना ही पड़ेगा कोडिंग, if you are going into even manufacturing area या थर्मल एरिया में आप जा रहे हो. यस तो सर. ये प्रोडक्शन में भी मेरे ख्याल से अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जा रहे हो, देन आल्सो स्टूडेंट नीड्स टू हैव सम बेसिक कोडिंग अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज़ जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च आईआईटी बॉम्बे, या जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिलेटेड डोमेन्स है आईएससी के या अदर आईआईटीज के, तो स्टूडेंट इन दोस डोमेन्स आल्सो दे लर्न दोस काइंड ऑफ कोडिंग थिंग्स. तो आपको भी सीखना पड़ता है, राज. हाँ सर,
अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे आते हैं, जैसे कभी डिजाइन लैब लग जाती है, तो उसमें सी प्लस प्लस से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी या मैटलैब से आपको करनी पड़ेगी। तो ये आपको इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्यों ना ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है 2 साल की, यहाँ सीख के हम एक अच्छा नंबर ग्रैब करके यहाँ से निकले। यस, एक्चुअली जब हम शुरू में लगता है कि बहुत सारी चीजें, अगर हम एक एग्जांपल लें, तो बच्चा जब छोटा होता है उसको अगर हम 15 इयर्स की एज में अगर सपोज समवन डोंट्स नो टू हाउ टू ड्राइव ए बाइक या कार, तो बिल्कुल दिक्कत आती है, यार ये चलेगा कैसा, हाउ आई विल बी एबल टू कंट्रोल दीज 5 थिंग्स, स्टीयरिंग भी कंट्रोल करना यस है सर। एंड आई नीड टू कंट्रोल द ब्रेक आल्सो, गियर्स आल्सो, एक्सेलरेटर आल्सो। बट जैसे जैसे हम सीखते हैं, जैसे जैसे हमारा एक लेवल रहता है कि हाँ मेरे को करना है, मेरे को सीखना है, तो इफ स्टूडेंट्स आर हैविंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म टू लर्न दोस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो चलती होती है और आपको एफर्ट्स भी नहीं करने होते। तो जब आप यस गाड़ी सर। चलाते हो आपको एफर्ट्स नहीं करने होते, बट जब आप उसमें मास्टर हो जाते हो, तो सेम काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज जो हमारा एक काइंड ऑफ बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, विच इज एक्चुअली ए गॉड गिफ्टेड थिंग, तो वो इतना कैपेबल है टू लर्न ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज फाइनली ऑल दीज थिंग्स आर ह्यूमन मेड ना। अब कोडिंग कहीं अलग से तो आया नहीं है, दोस थिंग्स आर by humans only, persons only, तो आप भी उसको सीख सकते हो, बट दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट इज रिक्वायर्ड कि हाँ मेरे को सीखना है एंड आई वांट्स टू मेक माय कैरियर इन दैट एरिया। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से काम करते हो तो सीख पाते हो, बिकॉज दैट एक्सपोजर यू विल गेट। आईआईटीज का जो एक्सपोजर है, जो आप बता रहे हो कि एक प्राउड फील होता है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन अवेलेबल है, आपके आसपास का जो क्राउड है, क्योंकि वो भी सीख रहा है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, यार मेरे को भी सीखना है, मेरा यस फ्रेंड सर। सीख रहा है, मेरे कोलीग सीख रहे हैं, मेरे सीनियर सीख रहे हैं, तो मेरे को भी सीखना है, एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर सिटिंग एट द होम। जब बच्चे आते हैं, मैं भी उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि सपोज इफ दे आर अनेबल टू स्कोर गुड गेट स्कोर, 500 600 उनका गेट स्कोर आ रहा है, और वो पूछते हैं कि सर क्या मैं घर रह कोडिंग सीख लूं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप सीख लो, देयर इज नॉट ए इशू, बट इट इज गुड टू गेट इनटू सम आईआईटीज इन सम गुड नॉन कोर ब्रांच, तब सीखो उसको, बिकॉज आपको दो तरह की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। जिस प्लेटफॉर्म से आप कोडिंग सीख रहे हो वहां से भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम जो आईआईटी का स्ट्रक्चर है, जो आईआईटी का प्लेसमेंट जो एक अपॉर्चुनिटीज है, दैट आल्सो यू विल बी एबल टू यूटिलाइज। और एक क्या होता है कि घर बैठ के आपको आज तो मोटिवेशन है, आज तो मिल गया कि मेरे को कोडिंग सीखना है, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट डे, अबाउट टुमारो, व्हाट अबाउट डे आफ्टर टुमारो, वो मोटिवेशन धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो जाता है। बट इफ यू आर एट दिस काइंड ऑफ प्लेसेस लाइक आईआईटीज एंड एनआईटीज, टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो आपको डेली बेसिस पे मोटिवेशन मिलता है। कोई एक आध दिन एनर्जी लो हो सकता है, बट जब आपको आपके सीनियर्स का मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा कि यार उसका 50 lakhs में प्लेसमेंट हो गया है, दैट समवन got placement 20 lakhs, so that really motivate anyone to go for such kind of domains। तो बहुत अच्छा लगा राज, आपने टाइम स्पेयर किया, एंड very good information actually, because these kind of things are also there in our mind, because I think last year also when we discussed, I many time I highlighted that thing, it doesn't matter if you are going for non core, it doesn't matter whether you are in thermal or in food process engineering, and when I'm getting same information from the student, that is also very much satisfying for me, बिकॉज मेरे पास भी ऐसा नहीं कि मेरे अंदर से इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी, द इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ओनली। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिलता है, दैट रियली हेल्प्स सो मेनी स्टूडेंट्स। तो आई होप कि नेक्स्ट ईयर भी मैं आप लोगों से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, विद दैट आई विल बी एबल टू फर्दर मोटिवेट गाइड सो मेनी स्टूडेंट्स लाइक यू। तो एनी अदर थिंग राज विच यू वांट टू शेयर विद अस? ब्रांच का प्लेसमेंट अच्छा है, एडमिशन मेरे ख्याल से इसमें आपको सेकंड राउंड में मिला, मेरे ख्याल से लास्ट राउंड तक जाते 550 तक या 575 जनरल तक मिल जाता है फूड प्रोसेस में। ये स्पॉट राउंड 2 तक ही खुला था सर, लास्ट राउंड, तो उसके बाद ये बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, गुड। तो और अदर ऐसा कोई ब्रांच खड़गपुर का जिसका बहुत टॉप प्लेसमेंट रहता है, सबसे टॉप प्लेसमेंट रहता है अदर देन फूड प्रोसेस? सर अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है कि ये इसका बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, और एमएस का सर बहुत अच्छा है, क्योंकि एमटेक क्या है ना, 2 साल का इतना ज्यादा मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा, जस्ट ऐसे निकल जाएगा 2 साल। तो थोड़ा वो चीज है कि अगर कोई सच में लेना चाहता है कि अच्छा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में, तो एमएस के लिए बोलिए। अब बच्चों को ये लगता है कि यार 3 साल कैसे पढ़ेंगे, एक बार आप आओ तो आप रहना चाहोगे। हम खुद चाहते हैं कि हम 2 साल से ज्यादा रहे यहाँ पे, तो वहां बेनिफिट है। That एंड I discussed with many students and I motivated them, because जब वो पूछते हैं कि सर एमएस के लिए क्यों जाना है, एमटेक के लिए जाना है, एमटेक का मेरा अच्छा स्कोर है। अब एमटेक एमएस देयर इज नो डिफरेंस, एंड इवन आई फील कि एमएस तो कुछ जगहों पे बेटर हो जाता है। अगर आपको कोर एरियाज में जाना है,
या आपको कुछ एक्सपर्टाइज स्किल एक्वायर करनी है, तो आपको ज्यादा टाइम है, यू आर गोइंग टू स्पेंड मच टाइम इन ए पर्टिकुलर आईटी, और आपको रिसर्च के लिए अच्छा सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। बट खैर ये हम मोटिवेट करते रहेंगे, करते भी हैं, बट फिर भी बच्चों का एक हेजिटेशन रहता है राज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक्चुअली दे शो मच इंटरेस्ट इन एमटेक प्रोग्राम ओनली, बिकॉज जब उनको बोला जाता है कि 3 साल का कोर्स है, तो वो थोड़ा सा एक हेजिटेट करते हैं। एंड सेम विद डायरेक्ट पीएचडी ऑल्सो। तो क्या डायरेक्ट पीएचडी का भी कुछ कॉन्टेक्ट है आपके, कुछ स्टूडेंट से कुछ डिस्कशन हुआ है? someone doing direct PhD program in IIT Kharagpur, you are having any contact, या आपने कभी डिस्कशन किया हो कि क्या प्लेसमेंट है? नो सर, डायरेक्ट पीएचडी वालों से तो नहीं है ऐसा कुछ कांटेक्ट। तो same thing I motivate some of the student actually, because who completed their BTech recently और उनको रिसर्च में कुछ अच्छा करना है। तो डायरेक्ट पीएचडी इज आल्सो वेरी गुड प्रोग्राम, बिकॉज 4-5 साल में, इन ए पीरियड ऑफ 4-5 years द स्टूडेंट इज गोइंग टू गेट सम मास्टर्स आल्सो एंड पीएचडी आल्सो। तो अगर 22-23 साल का बच्चा अगर कोई ट्राई करता है, तो इन्हें एज ऑफ 27-28 उसको डायरेक्ट पीएचडी मिल जाता है। तो उसके बाद आप इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। अभी पीएचडी का मतलब, अभी एमएस का मतलब ये नहीं है कि यू आर गोइंग टू बिकम टीचर ओनली। Now the यस scenario सर। has changed, and people, if they are entering into MTech program, they are learning actually those kind of experts, and they are also having that kind of motivation guidance कि मेरे को नॉन कोर के लिए प्रिपेयर करना है। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, तो बच्चों को नॉन कोर काइंड ऑफ पता ही नहीं होता था, उनको ऐसा जैसा एक्सपोजर यस आइडियाज सर। नहीं होता था, वो कोर में लगे रहते थे। देयर इन सम आईडी वो लगे पड़े हैं, कोर का थर्मली पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, कोर प्लेसमेंट आती नहीं थी। तो फाइनली उनको वो मैसेज किया जाता था मार्केट में कि आईटीज का प्लेसमेंट नहीं है। तो आईटीज में प्लेसमेंट है, बट सिनेरियो इज चेंजिंग, एंड दैट इज आल्सो नॉट इन द हैंड ऑफ ए पर्टिकुलर आईटी ना, बिकॉज दैट यस इज द सर। एंटायर इकोसिस्टम, दैट इज द एंटायर इकोसिस्टम। Nowadays the non-core companies are developing, there are good प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट। तो आपको उतना एक्सपर्टाइज करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर वो स्किलिंग करनी पड़ेगी, सो दैट यू विल बी एबल टू मीट द मार्केट रिक्वायरमेंट, मार्केट डिमांड। तो ये अभी एक इंफॉर्मेशन है। और नाउ आई एम आल्सो वेरी हैप्पी टू सी कि बच्चे भी बहुत ज्यादा अडेप्टेबल हो गए हैं। अभी हमारे टाइम में देखोगे तो बच्चे रिजिड थे, वो सोचते थे कि मेरे यस को सर। प्लस प्लस बस पढ़ लिया बीटेक में, उतना काफी है, बट उसके बाद नहीं पढ़ना है ना। तो बट अभी जो है, मैं बच्चों से जब डिस्कशन करता हूँ, वो बड़े मोटिवेटेड है अभी वो सीखने के लिए, कोडिंग वगैरह सीखने के लिए। पाइथन सीख रहे हैं मैकेनिकल के बच्चे। पहले ये नंबर बहुत कम रहता था, अब मान के चलो 5-10%, बट अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर एक्चुअली वेरी मच अडेप्टेबल टू लर्न दोस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग अ वेरी गुड करियर आउट ऑफ द कोर ब्रांचेस, नॉन कोर ब्रांचेस। तो बहुत अच्छा लगा राज। एक हाँ, एक और चीज है सर, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या है कि जैसे मैकेनिकल कोर हो गया, और कोर के बच्चे भी क्या करते हैं कि ये दे गो टू द कोडिंग कंपनीज। लाइक मेरा एक मैकेनिकल वाले सीनियर से बात होती है, तो वहां पे 20 की स्ट्रेंथ थी थर्मल में, 14 बच्चे प्लेस हुए हैं, 12 बच्चे नॉन कोर में गए हैं। 12 बच्चे नॉन कोर में। अब देखो उनको, मेरे ख्याल से जब 12 बच्चे वो नॉन कोर में गए हैं, तो वो फूड प्रोसेस के बच्चे भी वहां जा सकते हैं, एंड आई फील देयर इज नो डिफरेंस थर्मल में और फूड प्रोसेस में। कोई डिफरेंस नहीं अगर आप नॉन कोर के लिए जा रहे थे। तो क्या कंपनीज जो आती हैं राज, वो इक्वली इनवाइट करती हैं सभी कंपनीज को, या दे रेस्ट्रिक्ट, दे मेंशन सम ऑफ द ब्रांच? कोई नॉन कोर कंपनी ऐसा तो नहीं है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर देती है कुछ ब्रांचेस को? नहीं सर, अगर ऐसा होता कि अगर वो रेस्ट्रिक्ट करती तो हमारे जो 2-3 बच्चे हुए हैं वो होते नहीं। इट इज जस्ट मैटर कि आप वो जो कोडिंग स्किल है आपकी कितनी अच्छी है। अगर आप 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चन में से आप तीनों सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको बुलाएगी अंदर, क्योंकि उनको स्किल चाहिए, उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सी ब्रांच से, उनको स्किल चाहिए कि आपके पास है, एंड आप इवन आई कोड कर फील कि सकते आईआईटी हैं। में तो आपका जो एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं क्लास से, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती होगी, तो दे आई थिंक दे रीच, दे एक्चुअली दे आई थिंक यस दे सर। दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस इज देयर। बच्चों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है इसमें कि ये अगर खुली नहीं है तो खुलवाओ हमारे लिए ये खुलवाओ, वाली। बिल्कुल बिल्कुल। आईटीज में वो रहता है कि अगर किसी ब्रांच को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो देन दे रीच टू दैट पर्टिकुलर ब्रांच एंड प्लेसमेंट ऑफिसर कि हमें भी अलो करो। तो मेरे ख्याल से फाइनली इट मैटर्स कि आपके पास क्या एक्सपर्टाइज है, हाउ मच योर स्किल्स आर मैचिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो अगर वो मैच कर जाते हैं, तो दे आर हैप्पी टू रिक्रूट यू इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच। तो बहुत अच्छा लगा राज, आपने टाइम स्पेयर किया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई फील स्टूडेंट आर गोइंग टू गेट टू यू, बिकॉज फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग हेजिटेशन रहता है बच्चों में। नॉन कोर के लिए इफ यू आर रेडी टू मेक योर कैरियर इन दैट डायरेक्शन, और इवन कोर में भी अगर आपका कुछ इंटरेस्ट है, तो आप इस तरह की ब्रांचेस के लिए जा सकते हो। द एक्सपोजर ऑफ दीज काइंड ऑफ आईटीज लाइक आईटी खड़गपुर, कानपुर, मद्रास इज यूनिक एक्चुअली इन ऑल यस मैनर्स। So many best wishes, Raj, for your future career ahead, and I hope again we will meet after 1 year.
and so that you will, at that time you will be able to ensure some very good placement. Yes, sir. Abhi aapne just, you have completed your first semester, and I feel you are, moving in a very right direction. You are learning some good softwares, and you are looking very much motivated. Actually, that motivation is required, and I can see very good positivity in you, Raj, and that is really, that is going to help you in achieving your final target success. So from my side and from the your PTA team, Raj, many congratulations and best wishes to you, and thank you once again for sparing your time. थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार मुझे करना भी था, आपको थैंक यू बोलना था कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू लाइक आई गॉट दिस अ गुड IIT